جو اس وقت قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاسوں میں بل لائے جا رہے ہیں، قانون سازی کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے جو موقف اختیار کیے رکھا کہ اس طرح کے بلوں کی مخالفت بھی کی اور اسے پاکستان کے مفاد کے بھی منافی قرار دیا، اور پھر یہ کہ کسی طرح بھی پارلیمنٹ کے اراکین کو اس کی افادیت کو سمجھنا یا اس کے نقصانات کو سمجھنا، اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اس پر مشاورت کی جاتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اسپیکر صاحب کے لیول پر چند پارٹیوں کو تو گھر بلایا جاتا ہے، ان کو شریک مشورہ بنایا جاتا ہے، لیکن ایک معتبر اپوزیشن جماعت جمعیت علماء اسلام کو اور اس کے علاوہ بھی کچھ دوسری جماعتوں کو بھی یہی شکایات ہیں کہ ان کو اس مشاورت سے دور رکھا گیا۔ یہ جمہوری اصول کے خلاف ہے۔ جمہوریت نام مشاورت کی ہے، اظہار رائے حق میں بھی کی جا سکتی ہے، مخالفت میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ نہ تو آپ مسئلے کو سمجھنے کا کسی کو موقع دے رہے ہیں، آپ پر غیر ضروری طور پر اجرت سوار ہوتی ہے، اور پھر جب آپ مشاورت کے لیے اجلاس بلاتے ہیں تو ان جماعتوں کو مشاورت کے دائرے سے باہر رکھتے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت موجودہ حکمرانوں کی وہ بدنیتی کہ جس کے بعد ہم نے بیٹھ کر اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لیا۔ کل جمعیت علماء اسلام کی پارلیمانی پارٹی کا اس پر اجلاس ہوا، اور اس میں صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے جو ہمارے پارلیمانی لیڈرز تھے وہ بھی تشریف لائے، اس میں سندھ اور پنجاب کی جمعیت کے ذمہ داران بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس میں ان تمام جو ایف اے ٹی ایف کے دباؤ میں اور ان کے شرائط کے تحت قانون سازی کی گئی، اس پر ایک اعلامیہ تیار کیا گیا جو میں آج آپ کی وساطت سے پوری قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے رکن ممالک کو پابند کرنا، اس میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگوں، اداروں اور ان کے افراد کو مستوجب سزا قرار دینے کے لیے قانون سازی سے جہاں قوموں کی اظہار رائے کی آزادی کا حق سلب کیا گیا ہے، پاکستان کا فرض تھا کہ وہ اقوام متحدہ کو آمادہ کرتے کہ کشمیر سے متعلق ہندوستان کو 1948 اور 49 کی قراردادوں پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ جس وقت پاکستان کے پاس کشمیر کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ روز اول سے موجود ہے، آج ہم بین الاقوامی اداروں کے ان کے فوری ضرورت کے تحت پاس کیے ہوئے قراردادوں پر تو پاکستان میں قانون سازی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں،
لیکن ایک لمحے کے لیے ہم نے ان کے سامنے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے سن 4849 کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے، اپنے آپ ہندوستان کو اس کا پابند بنائے۔ اس سارے قضیے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ FATF کے شرائط کے تحت قانون سازی کے عمل میں پاکستان پر دباؤ ڈالنے والوں میں انڈیا بھی شامل ہے۔ کیا میسج آپ اپنی قوم کو دینا چاہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اور جس کے حوالے سے بین الاقوامی طور پر پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دباؤ ڈالنے والے گروپ میں انڈیا خود شامل ہے، اس کے دباؤ میں تو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہماری سفارتکاری کہاں گئی؟ ہماری وہ صلاحیت کہاں گئی کہ جس کے ذریعے سے ہم عالمی برادری کو یا عالمی فورم کو اس طرح متوجہ کر سکیں کہ وہ ہندوستان کو بھی کشمیر کے حوالے سے قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے پابند کر سکیں۔ مستقبل میں اگر اقوام متحدہ کشمیر پر کوئی قرارداد منظور ہونے میں کامیاب ہوتی، ایک نئی قرارداد وہ لے آتی اور آزادی کشمیر کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، یا ہمارے قومی اثاثوں اور ہمارے قومی مفادات کے خلاف کوئی قرارداد کی کوشش ہوتی ہے یا پاس ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارے ان قوانین کا اطلاق ان حریت پسندوں پر بھی ہوگا؟ اس بارے میں موجودہ قوانین میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہمارے حکمرانوں نے گھٹنے ٹیک کر دیے۔ اس کے خطرناک پہلوؤں سے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہم نے ملک کو بچا لیا ہے اور ہم نے ملک کو مشکل سے نکال لیا ہے، آپ نے ملک کے مستقبل کو تاریکی کی طرف دھکیل دیا ہے، آپ نے ملک کی آزادی کو داؤ پہ لگا دیا ہے آنے والے مستقبل میں۔ نااہل اور سلیکٹڈ حکومت میں ایسے گھمبیر مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ملک کو اس قدر اقتصادی طور پر کمزور کر دیا گیا ہے کہ FATF کے شرائط پر قانون سازی کے لیے مجبور کیا گیا ہے اور پاکستان کے بازو مروڑ کر قانون سازی کرائی جا رہی ہے، اور پھر ناکام خارجہ پالیسی اور کمزور لابنگ کی حکومتی ناکامی کو لے کر قوم کو تسلی دی جاتی ہے کہ ہم نے ملک کو بلیک لسٹ سے بچا لیا ہے، جبکہ سیاسی طور پر ہمارے اعصاب جب مضبوط تھے تو ماضی میں کبھی FATF پاکستان کو اپنی شرائط پر قانون سازی کرنے پر مجبور نہ کر سکا۔ میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم گرے لسٹ میں ہیں، کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ قرار دینے کی دباؤ میں رکھا جا رہا ہے۔ ہم پہلے بھی گرے لسٹ میں گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری حصے میں ہم بلیک لسٹ میں چلے گئے۔ نئی حکومت آئی، جمہوری حکومت تھی، اس نے ملک کو واپس گرے اور اس کے بعد وائٹ کرا دیا۔ وائٹ لسٹ میں ہم آ گئے تھے اور 2018 تک ہم وائٹ لسٹ میں تھے۔ جب سے ان نااہلوں کے حوالے ملک ہوا ہے، ہم دوبارہ گرے لسٹ میں چلے گئے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر تک ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے اگر آپ اس کے مطابق قانون سازی نہیں کریں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کو کیوں مجبور نہیں کیا جا سکا اس قانون سازی پر؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کو اس طرح کی قانون سازی پر کیوں مجبور نہیں کیا جا سکا؟ اسی لیے ایک بڑے بین الاقوامی منصوبے کے تحت ایسے ایجنٹوں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ وہ FATF اور بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر قانون سازی کا ہدف حاصل کر سکیں۔ ماضی میں بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود پاکستان کو اس قانون سازی پر مجبور نہیں کیا جا سکا، بلکہ اس وقت 2015 میں جمہوری حکمرانوں نے ملک کو بلیک لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے آئے
एशिया पैसिफिक ग्रुप की पाबंदियों का भी मुकाबला किया गया और उनको भी पाकिस्तान से पाबंदियाँ उठाने पर मजबूर किया गया। कश्मीर, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में इंडिया की मुदाखलत को हमेशा नज़रअंदाज किया गया, जो हमारी सफारतकारी की नाकामी का मुंह बोल सबूत है। हम ज़बानी बातें करते हैं कि इंडिया बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंसानी हुकूक को पामाल कर रहा है, नाजायज़ कब्ज़ा जमाए हुए है। अफ़गानिस्तान में इंडिया का रोल पाकिस्तान की मुखालफत में, उसकी वहाँ पर कारकर्दगी, वहाँ तो हम मुकम्मल तौर पर सफारतकारी के मैदान में नाकाम हो चुके हैं। तो हमारे मफादात का आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। एक आखिरी पेशा आपने इस पर चला लिया कि मुल्क के अंदर आपने ऐसी कानून साजी कर ली कि जिससे पाकिस्तान आने वाले मुस्तक़बिल में वो आज़ादी से कोई फैसला भी नहीं कर सकेगा। हाल ही में हमारी सफारतकारी का हाल देखिए कि हाल ही में पाकिस्तान ने 4 भारतीय शहरियों की दहशतगर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मुतअद्दिद बार केस दायर किया, मगर हम ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम हुए और पाकिस्तान को सुख्ती का सामना करना पड़ा। ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत ने इस अहम कानून साजी में न तो अपोजिशन से कोई मशवरा किया और न वो इन कवानीन के पास करने के मरहले में शामिल रहे, बल्कि हुकूमत ने अपनी अक्सरियत के बलबूते पर और बैनुल-अक़वामी प्रेशर पर पार्लिमानी रिवायात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज और बिल्डोज़ किया, जो काबिल मज़म्मत है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी 2 बड़ी पार्टियों ने सोचा ये कि हम अपनी तरामीम पेश करें और उन तरामीम का उनका ख्याल ये था कि फ़ायदा होगा, लेकिन वो तरामीम भी उनकी कबूल नहीं की। तो इस तरीके से एक कमज़ोर मौक़िफ़ लेकर पेश करना और हम इस तरीके से सफारतकारी के महाज पर कौम की सुख्ती का सबब बन रहे हैं, पाकिस्तान की सुख्ती का सबब बन रहे हैं। और अभी आपने देखा, भला इस तरह भी कोई आप खारजा पॉलिसी तय करते हैं कि इब्तिदा दिन के बग़ैर किसी शर्त के हर मैदान और हर महाज पर आपका दोस्त सऊदी अरब, जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहा है, जो भी हालात उसके ऊपर गुजरे, उनके लिए मफादात होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का मसला आता है तो आपके साथ खड़ा है। इस हुकूमत ने आज सऊदी अरब को भी नाराज़ किया। सीपैक का मसला जो पाकिस्तान की तरक्की की अलामत था, उस पर चीन को नाराज़ कर दिया। हमें कहाँ का छोड़ा है इन लोगों ने। और आज जो कानून साजी हो रही है, जो पाकिस्तान के निज़ाम में इस कौम की ग़ुलामी की अलामत बन सकता है आने वाले मुस्तक़बिल में, ये भी कर गुजरे। जैसे इनका एजेंडा ही यही था कि इस मुल्क को किस तरह हम बैनुल-अक़वामी ग़ुलामी की तरफ धकेल सकते हैं, उस एजेंडे की तकमील के लिए वो अपने सब कुछ कर रहे हैं। लिहाजा हम अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह रखते हैं कि हमारा इख्तिलाफ़ बड़ा उसूली है और हमने इनके ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ लिया हुआ है, आए रोज़ बरोज़ हमारा मौक़िफ़ सही साबित होता जा रहा है। आम आदमी पर यह बात वाज़ेह होती चली जा रही है और हम इस हवाले से भी कौम को अंधेरे में नहीं रखना चाहेंगे। आने वाले दिनों में भी हम इनकी इस हकीकत को तश्तज़बाब करेंगे ताकि कौम को गुमराह न किया जा सके और हम एक बाइज़्ज़त कौम के तौर पर अपना मुस्तक़बिल तय कर सकें। ये बताइएगा कि आपने तो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए कि मुशावरत नहीं करती, अपोजिशन की जमातें जो आप लोग इकट्ठे बैठते हैं, फिर वही लोग जाके कंधा भी फराहम करते हैं अपना हुकूमत को, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और एक APC होनी थी, रहबर कमेटी का इजलास होना था, उसका मुस्तकबिल क्या है? मेरे ख्याल में ये एक मुस्तकिल सवाल है जो हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक़ नहीं है, लेकिन सवाल आपका अपनी जगह पर। ऐसा नहीं है कि हालात हमने जो इन 2 हमारी बड़ी पार्टियों ने मौक़िफ़ लिया, उस पर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है। और
इस वक्त जब मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं कर पाए हैं। तो ज़ाहिर है कि अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तो उसी सूरत में होगी। अलबत्ता अपोजिशन के जिन जमातों को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया है, हम मुसलसल राब्ते में भी हैं और हम मज़ीद भी अपनी बाहरी मुशावरत की तरफ आगे बढ़ेंगे। मौलाना ये फरमाएं कि हम भी वहाँ मौजूद थे आई-9 में, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके पास तशरीफ़ लाए थे और वो जो ही उठ के गए थे तो उसके बाद आज़ादी मार्च का ऐलान हो गया था। कल की जो आपकी मीटिंग है, क्या उसमें कोई फ़ैसला हुआ या उसमें कोई मुशावरत हुई या कोई राय दी कि एक मरतबा फिर जो है वो JUI अकेले में ये तहरीक जो है वो चला दे अगर ये नहीं भी आते हैं तो? अब तक की जो सिचुएशन है ये बिल्कुल वही फेज़ है जिस तरह उस वक्त है। देखिए, जवाब तो हमें भी आते हैं, लेकिन हम एहतियात का दामन छोड़ते नहीं हैं। आप दूर क्यों जाते हैं? तो बहुत दूर की बात है। लाहौर में एक दिन मेरी मीटिंग होती है जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, अगले रोज़ मेरी मीटिंग होती है बिलावल साहब के साथ। दोनों पार्टियों से इस बात पर इत्तेफाक होता है कि हमने ईद के फ़ौरन बाद रहबर कमेटी का इजलास करना है। वो तजावीज़ जो तय कर लेंगी उसको एजेंडा बनाएंगे हम APC का। मैं वहाँ से डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना हुआ। रास्ते में पता चला कि अगले रोज़ वो हुकूमत को वोट करें। तो शिकायत तो हमारी बनती है कि अभी तो हम जो मुलाकात कर चुके थे और जब हमने उनके साथ गुफ्तगू की, अब ये जो एक तसव्वुर दिया जाता है जी कोई ज़रूरत थी या मुल्क को ज़रूरत थी, तो ये बातें तो एक दफ़ा तय हो चुकी है कि हुकूमत नाजायज़ है, इस पर इत्तेफाक राय है हमारा। फिर उससे किसी खैर की तवक्को रखना, फिर इस पर ब्लैकमेल होना कि जी ये तो मुल्क के मफाद की बात है, तो न मुल्क के मफाद में आपकी तरावीम को कबूल किया गया। एक तरफ आप उनके साथ मुफाहमत का ये अमल शुरू करते हैं, दूसरी तरफ आपके मरीम नवाज़ के साथ लाहौर में क्या होता है जी। एक तरफ आप उनके साथ मुफाहमत का एक रवैया इख्तियार करते हैं, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नए केस आते हैं, उनकी पेशकश हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि इन रवैयों के साथ वो कोई जमहूरियत की खिदमत कर सकेंगे। हम इस बात के मुतमन्नी हैं कि हम आपस के इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और बिल्कुल एक यकसुई के साथ, क्लियर माइंड के साथ हम एक होकर वाज़ेह लाए अमल इख्तियार करें। जिस तरह हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, उस हवाले से हमारा किरदार भी बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। मौलाना आप ये फरमा दीजिएगा दो बड़ी सियासी जमातें, तो कब तक आप समझ रहे हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगी और APC का जल्द इनेकाद होगा? उनके राब्ते तो हुए हैं और उन राब्तों के नतीजे में अब देखते हैं, जब भी वो राब्ता मज़ीद ज़िम्मेदाराना राब्ता करेंगे, क़यादत की सतह पर राब्ता करेंगे, तो उनमें हम उनके साथ बड़ी वजाहत के साथ बातें करेंगे सारी, और इन चीज़ों को दूर करेंगे जो इस वक्त अपोजिशन को ग्रे लिस्ट में डाली हुई है। अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना चाहते हैं, खुद ग्रे लिस्ट में पड़े। मौलाना साहब ये बता दें, अपोजिशन बज़ाहिर यहाँ पर तकसीम नज़र आ रही है और कुछ दिन पहले बाबर अवान साहब ने कहा कि मौलाना साहब लंदन वाले मियाँ साहब के साथ हैं, जबकि जो पाकिस्तान वाले मियाँ साहब हैं वो सिंध के हुक्मरानों के साथ हैं। तो इस तरह अपोजिशन दो हिस्सों में तकसीम नज़र आ रही है, तो हुकूमत को ये टाइम नहीं मिल रहा? बिल्कुल हुकूमत को इसका फ़ायदा मिल रहा है और उसका एहसास बड़ी पार्टी को करना चाहिए। मौलाना साहब, सिंध के हवाले से कुछ इक़दाम वफाकी हुकूमत उठाने जा रही है। ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कल सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि वफाक कराची से मुतल्लिक कुछ अहम कानून साजी करना चाह रही है, कुछ इक़दाम उठाना चाह रही है। मुख्तलिफ़ खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि कहीं वफाक कराची का कंट्रोल तो नहीं संभालने जा रहा। अगर इस तरह होता है तो आप किस तरह देखते हैं इसको? अभी ये कोई निचोड़ सूरत हाल नहीं है। इस वक्त इसको इसमें बलूगत आएगी तो फिर तरक्की। मौलाना ये फरमाएं, 14 सेनेटर जो खड़े खड़े लापता हो गए थे, उनका इन्होंने कहा कि हम सुराग लगाएंगे, वो सुराग अभी तक नहीं लगाया। एतमाद का फुकदान नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ आपका मौजूद है, तो फिर किस तरह आप ट्रस्ट कर रहे हैं? आप क्राउड इन दोनों जमातों से बड़ा इकट्ठा कर सकते हैं? तो इस पहलू को भी हम मद्देनज़र रखते हैं
ये तहरीकों के तकाज़े लेकिन क्या वो तो होते हैं। सबोताज करके जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमें आगे बढ़ना है और इस सारी सूरत हाल को उनके सामने रखना है हमने कि आपकी वजह से क्या क्या मुश्किल आ रही है, अपोजिशन क्यों ख्वार होती जा रही है, कमज़ोर होती चली जा रही है, हमें इस मुश्किल से अभी निकलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले महीने से जो मौलाना आपका एक एहतजाज छोटी है वो पेशावर में, उसके लिए दावत दी है आपने उनको, जो 7 तारीख को आपका एक रैली हो रही है? 7 तारीख को हमारी जमात ने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है और एक बड़े पैमाने पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाएगी। उस हवाले से हम अभी मुशावरत के अमल से गुज़र रहे हैं कि किस तरह हम उसके दायरे कार को कहाँ तक महदूद रख सकते हैं, ताकि हम कोई ऐसे इलाके में न चले जाएं कि वहाँ पर कोई इशू जो है वो मुतनाज़ा बन जाए। जहाँ जहाँ तक इत्तिफ़ाक़ राय होता है वहाँ तक हम जाएं और उसको एक बहुत बड़ा कामयाब, क्योंकि 7 सितंबर वो दिन है कि पार्लियामेंट ने एक मुत्तफ़क़ा तरमीम के ज़रिए कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। मतलब FATF के पहले 2 कवानीन जो पहले 2 कवानीन थे, उन पे आपकी पार्टी ने दोनों ऐवानों में भरपूर मुखालफत की, लेकिन जो लास्टली अभी ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट आया उसमें भी FATF की ही तरमीम थी, ये जो कल खत्म हुआ, तो उसमें आपकी जमात ने उसकी मुखालफत नहीं की, उसको सपोर्ट किया, क्यों? नहीं सपोर्ट किया सर, सपोर्ट किया सर, किया, वोट दिया सर।